Oh, hello. Good morning, students. Welcome to Success Station. I am Vikrant Anand, and from today, we are starting a new chapter that is real numbers of class 10th standard. Okay? So, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और जो भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, all those questions and topics are very, very, very important for your board exams. Okay? तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर रियल नंबर्स. So, जो रियल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं. Now the first type is what? First type is the rational numbers. The first type is what? The first type is the rational numbers, and the second type is what? The second type is the irrational numbers. Okay, understood? The second type of numbers is irrational numbers. So class 9th में आप लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स का. सो आइए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं डेफिनेशन को. रैशनल नंबर्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर? अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. So it can be represented in the form of p by q and where q is not equal to 0. ना ये चीज क्यों मेंशन रहता है that q is not equal to 0 because आप देख सकते हैं q जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 हो गया then the value will not be defined. मतलब p by q का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा. ओके, क्लियर? Now what you will say about the definition of an irrational number? That it cannot be represented. It cannot be represented. Okay, it cannot be represented. It cannot be represented in the form p by q. It cannot be represented in the form p by q. Okay, clear? And where q is not equal to 0. Okay, understood? Now, what is the decimal expansion of a rational number? Now, the decimal expansion of a rational number is of the form terminating or non-terminating repeating. मतलब एक रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो या तो टर्मिनेट करेगा, मतलब या तो वो एंड कर जाएगा, नहीं तो अगर वो एंड नहीं कर रहा है देन वो रिपीट डेफिनेटली करेगा. ओके, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग repeating. Non-terminating repeating. Okay, understood? Now for the irrational number, इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का होता है? इट इज ऑफ द फॉर्म non-terminating and non-repeating. Okay, non-terminating and non-repeating. Okay, understood? So this was a basic overview about the two types of real numbers, that is the rational and the irrational numbers. तो अभी हम देख लेते हैं different types of rational numbers. Now what is the first type of rational number? That is natural numbers. First type is what? The first type is natural numbers. So natural numbers are what? Natural numbers, as we know, these are the counting numbers. So natural numbers always start from 1. 1, 2, 3, 4, और ये आपका कंटिन्यूड रहता है कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक. ओके, अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स? दैट इज होल नंबर्स. सो ये नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में ना अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो जो न्यू कलेक्शन आता है उन्हें ही हम होल नंबर्स बोलते हैं. तो मैं सिंपली क्या करूंगा? 1 के आगे एक जीरो लगा दूंगा. तो 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. So this new collection is what? This new collection is the whole numbers. Now the next is what? The next is the integer. तो इंटीजर्स में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 0 को सिलेक्ट करते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity,
और ये जो नेचुरल नंबर्स हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है, उन नेचुरल नंबर्स का हम नेगेटिव को सेलेक्ट करते हैं। जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, अप टू इंफिनिटी का नेगेटिव -इंफिनिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो न्यू कलेक्शन आया है फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, दिस न्यू कलेक्शन इज टर्म्ड एज इंटीजर्स। ओके, अंडरस्टूड। सो इन्हें भी आप अगर स्पेसिफिकली बांटना चाहो तो ये +1 से +इंफिनिटी तक हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो -1 से -इंफिनिटी तक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अंडरस्टूड। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड दोज टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इस चैप्टर में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में ही डील करना है, और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एंड व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। So what is the first important property of the positive integers? The first is the Euclid's division algorithm. Okay, Euclid's division algorithm. And what is the second important property? The second important property is the fundamental theorem. Okay, fundamental theorem of arithmetic. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना होगा। ओके, सो आइए पहले वही देखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा लेमा, ये बहुत ही न्यू वर्ड होगा आप लोगों के लिए। तो पहले ये समझते हैं दैट इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो लेमा का मीनिंग होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव सम अनदर स्टेटमेंट। ओके, अंडरस्टूड। तो लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रूवन स्टेटमेंट को यूज करके किसी और डिफरेंट स्टेटमेंट या किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में उसका यूज करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए आप लोग, लाइक रिवीजन के टाइम में थोड़ा सा काम आ जाता है डेफिनेशन भी। ओके, सो लेमा का डेफिनेशन ये होता है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, it is a proven statement which is used to prove some another statement or some different statement. Okay, to prove some another statement. Okay, understood. अभी देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो अगेन दिस प्रॉपर्टी इज व्हाट? दिस प्रॉपर्टी इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर सेलेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ए और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बी। तो ये डेफिनेशन लिखते हैं उसका भी, if we have two positive integers, if we have two positive integers a and b, and what we will do, and when we divide a by b, मतलब a जो एक पॉजिटिव इंटीजर था उसे हम क्या करते हैं, b से डिवाइड करते हैं। b भी क्या था, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। ओके, if we have two positive integers a and b, and if we divide
A by B. Okay, and if we divide A by B, then there exists वहां पे क्या दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक integers Q and R. And there exists two unique integers Q and R such that. अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं. ये प्रॉपर्टी का बहुत ही ज्यादा यूज है इस चैप्टर में. ओके, सो वो प्रॉपर्टी देखिए क्या है. A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और यहां पे एक कंडीशन भी रहता है that the value of R should be greater than or equal to 0, but at the same time the value of R is less than B. तो यहां पे देखिए है क्या, इसी प्रॉपर्टी, यही दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लिखा है ना, ये प्रॉपर्टी जो है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. बचपन इन द सेंस क्लास 4, क्लास 5 एंड क्लास 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. नाउ व्हाट वाज दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? डिविडेंड. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, this is the important property. और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वही प्रॉपर्टी है. देखिए मैं इसे लिख रहा हूं, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. सो ये जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, ये है क्या? दिस इज नथिंग बट अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जो आप लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं. और वो प्रॉपर्टी क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज द वेरी बेसिक और वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, जैसे एक नंबर है 20, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर. नाउ एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं, दैट इज 3. डिवाइड करते हैं, 3 6 18. ओके, सो रिमाइंडर कितना आया? 2. नाउ ये 20 क्या है? डिविडेंड, बिकॉज जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट नंबर इज द डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो होता है डिवाइजर. और ये देखिए आपका क्वोशिएंट हो गया 6 और 2 इज द रिमाइंडर. तो देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 इज द डिविडेंड, 3 इज व्हाट? 3 इज द डिवाइजर. ओके, एंड 6 इज द क्वोशिएंट and 2 is the remainder. तो यही प्रॉपर्टी तो है. देखिए a is equal to b q plus r. तो यहाँ पे a देखिए, this is 20 is what? This is a. b is what? b is the divisor. So 3 जो है वो b का वैल्यू है, और q है what? ये 6 जो है वो q का वैल्यू है, and this r is what? ये जो 2 है ये r का वैल्यू है. ओके, और ये कंडीशन में पुट कर देते हैं हम लोग 0. r is what? r is 2 and it should be less than the divisor. और डिवाइजर क्या था हम लोग का? 3 था. देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये डिवीजन में हर जगह वैलिड रहता है, बट जनरली हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो ये हम कंडीशन लिखते ही नहीं. ओके, बट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में जब इसका डेफिनेशन लिखते हैं तो ये कंडीशन भी हमें मेंशन करना है. ओके, अंडरस्टूड. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्लियर हो गया. तो अब हम लोग मूव करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ. ओके, ना सबसे पहला चीज, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, मैं बताता हूं कि क्या डिफरेंस है. ये क्लियर हो गया होगा. मैं स्क्रीनशॉट जा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके नोट भी कर सकते हैं. ओके, ओके, आई एम रबिंग दिस पोर्शन. ओके, सो सबसे पहला चीज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम एक वर्ड जो है ना, पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझिए. जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पहले लेमा का मीनिंग समझा, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा समझा. अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पहले एल्गोरिथम का मीनिंग समझिए. एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक क्या होता है? सिंपल सा एक नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, और उन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम लोग यूज करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है इसका. An algorithm
An algorithm consists of a number of steps. An algorithm consists of a number of steps used to solve a problem. Okay, used to solve a problem. ओके, अंडरस्टूड. एल्गोरिथम का मीनिंग क्या होता है? तो ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, दिस यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड अपॉन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, अंडरस्टूड. सो लेट्स राइट इट डाउन दैट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम is based upon Euclid's division algorithm is based upon Euclid's division lemma. Okay, Euclid's division lemma. तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको that lemma और algorithm means Euclid's division lemma और Euclid's division algorithm में थोड़ा सा डिफरेंस है. देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या आएंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. ओके, अ नंबर ऑफ स्टेप्स. तो हम लोग क्या करते हैं? हर एक स्टेप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं. बस इतना ही अंतर है. ओके, हर एक स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? पहला स्टेप में भी हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, सेकंड स्टेप में भी लेमा अप्लाई करेंगे, थर्ड स्टेप में भी. और जब हम तीनों को कंबाइन करके एक साथ अगर बोलना चाहें तो उन्हें हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, अभी डिफरेंस हो गया होगा क्लियर आप लोगों को कि लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है. ओके, अंडरस्टूड. सुनो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिए, एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या लिखा था? दैट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके, तो यहां एक जो एल्गोरिथम है दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. इसका भी कोई काम होगा ना, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द HCF, दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इसका यही काम. ओके, it is used means Euclid's division algorithm is used. It is used to find HCF, that is highest common factor of two positive integers. Okay, understood. ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ओके, जैसे दो नंबर्स है हमारे पास, एक है 45, एक है 55. तो अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को छोड़िए, पहले ये बताइए इन दोनों नंबर्स का अगर HCF आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? बहुत सारे मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. उस मेथड को रिमेंबर कीजिए, लाइक क्लास 5 और क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिवीजन मेथड. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, डिवीजन मेथड टू सॉल्व द HCF, टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं द बिगर नंबर इज व्हाट? 55 and the smaller number is 45. So bigger number 55 को हम लोग क्या डिविडेंड लेंगे और 45 को हम लोग डिवाइजर लेंगे. ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बता रहा हूं मैं. ओके, ठीक है, 55 डिवाइड बाय 45. ओके, सो 45 into 1 दैट इज 45. रिमाइंडर देखिए यहाँ पे क्या आया? रिमाइंडर आ गया 10. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, इट मींस हमें आगे एक और स्टेप प्रोसीड करना होगा. तो यहाँ पे ये जो 45 है ना, इसे हम यहां पे शिफ्ट कर देते हैं. तो यहां पे शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये जो डिवाइडर था ना पिछले स्टेप में, उसे अब हम न्यू डिविडेंड बना देंगे. ओके, यहां पे देखिए, इस 45 को हम लोग यहां लेके आ गए. तो ये 45 फर्स्ट स्टेप में डिवाइजर था और ये आपका डिविडेंड हो गया. तो यहाँ पे 10 जो देखिए वो क्या था पिछले स्टेप में? रिमाइंडर. बट अब वो क्या हो गया? अब वो डिवाइजर हो गया. ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी तरीके से हम लोग करते थे. सो 10 4 जा 40. Okay, so again remainder is what? 5. Again remainder is not 0. मतलब एक स्टेप और हमें प्रोसीड करना होगा. so, अभी इस 10 को यहां शिफ्ट कर देते हैं. so 5 2 10. यहां देखिए रिमाइंडर 0 आ गया. इट मींस अभी हमें आगे मूव करने का जरूरत नहीं है. तो लास्ट स्टेप में देखिए रिमाइंडर 0 आ गया. नाउ व्हाट इज द डिवाइजर इन दिस स्टेप? द डिवाइजर इज 5. इट मींस 5 इज द HCF ऑफ 45 एंड 55. ओके, अंडरस्टूड. ये मेथड तो याद होगा आप लोग को. तो बस इसी मेथड का यूज करके हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से दो नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं. आइए तो एक क्वेश्चन लेते हैं.
we will use the Euclid division algorithm to find the HCF of two positive integers. Okay, इसको मैं रब कर दे रहा हूं. ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. दो नंबर्स है हमारे पास 4052 एंड 12576. नाउ क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा? दैट यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 1257. ओके, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम प्रोसीड कैसे करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे बिगर नंबर क्या है 12576, तो इसे हम क्या लेंगे? डिविडेंड. और ये स्मॉलर नंबर क्या है 4052, तो इसे हम डिवाइजर लेंगे. सो फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे क्या? दैट सिंस ना, ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ना, इसे आप सिर्फ एक बार लिखो एट द बिगिनिंग. ओके, सिंस 12576 is greater than 4052, okay, so applying Euclid's division algorithm, और यू कैन से अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलेंगे बिकॉज एल्गोरिथम में तो नंबर ऑफ स्टेप्स आते हैं ना, बट हर एक स्टेप में हम अप्लाई क्या करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052. ओके, अगेन मैंने क्या बोला? लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसी को रिमेंबर कीजिए. हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. सो 12576 ये आपका क्या था? ये आपका डिविडेंड था, और डिवाइजर क्या था? 4052. सो यहाँ पे 4000 है 12000, तो आई थिंक 3 टाइम्स में देखते हैं ट्राई करके. 3 2 6, 5 3 15 एंड 4 3 12. सो 12156, बिकॉज 4 टाइम्स करेंगे तो वो ऑब्वियसली 12576 से ग्रेटर आएगा. सब्ट्रैक्ट करते हैं इन्हें. 6 minus 6 is 0, 7 minus 5 is 2, 5 minus 1 is 4, 0 0. Okay, तो 420 is the remainder. Okay, now what we'll do, ये जो 4052 इसे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ? ये जो डिवाइजर था पिछले स्टेप में, इसे अब हम न्यू डिविडेंड बनाएंगे. ओके, तो लाइक यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग अप्लाई करते हैं. क्या था? डिविडेंड क्या है? 12576. डिवाइजर क्या है? 4052. what is the quotient is 3 and the remainder is 420. okay, ये भी स्टेप हम लोग को साथ में लिखते जाना है. ओके, अंडरस्टूड. अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन में दिखा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन में, इसे आप लोग रफ में भी कर सकते हो. ओके, और अगर आप इसे सॉल्यूशन में दिखाना चाहो तो भी दिखा सकते हो, नो इश्यू. ओके, तो अभी हम 4052 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. ओके, आई थिंक कितने टाइम? बिकॉज 10 टाइम्स करेंगे तो दैट विल बी ग्रेटर. So we have to do it, I think 9 times. So 420 into 9. 9 to the 18. That is 3780. Okay. 9 times 3780. Subtract. 15 minus 8 is what? That is 7. 9 minus 7 is 2. 272. Okay. 272. Again we apply here. 4052 is equal to what? 420 into 9 plus 270. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, again इस 420 हम लोग यहाँ शिफ्ट करते हैं 420. So how many times? I think 1 time, because अगर 2 बार आप करोगे तो वो तो 420 से ग्रेटर हो जाएगा, पर चेक कर लेते हैं. बट वो 420 से ग्रेटर ही होगा. 2 to the 4, 7 to the 14, that is 544. ग्रेटर हो गया. It means 1 time. 1 times में 272. 10 minus 2 is 8. 11 minus 7 is 4. 3 minus 2 is 1. Okay, so 148. Again we will apply here. 420 is equal to 272 into 1 plus 148. Okay, understood. Again next step. Again 272 here.
ये वाला शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। सो 148 सब्ट्रैक्ट करते हैं अब। 12 minus 8 is 4 and 6 minus 4 is what? 1. 2 minus 1 is 1. Okay, that is 1 1 4. Okay, एक बार चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन करेक्ट है। 12 minus 8 is 4, 6 minus, okay sorry, 6 minus 4 is 2, I think, yes, mistake. 6 minus 4 is 2, 2 minus 1. Okay, so again 272 is equal to what? That is 148 into 1 plus 124. Okay, because 124 is the remainder. अब इसके आगे का पोर्शन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वो पोर्शन विजिबल नहीं होगा आप लोगों को। 124 divided 148. So 1 time 124, 8 minus 4 is 4, 4 minus 2 is 24. Okay, so 148 is equal to 124 into 1 plus 24. Okay, again 124, I think 24 into 5 is 120, so remainder is 4. Again we will apply here 124 is equal to 24 into 5 plus 4. I think इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, या 24 है, so 4 6 is 24, remainder is 0. So what is the divisor in this last step? The divisor is 4. So what is 4? 4 is the HCF of 4052 and 12576. So last step we will write that 24 is equal to 4 into 6 plus 0. Okay, understood? So आंसर क्या है हमारा? आंसर हमारा 4 है। तो एक स्टेटमेंट आपको लास्ट में मेंशन करना होगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट को। What I will write, that since remainder is 0, since remainder is 0 and the divisor at the last step, and the divisor at the last step is 4. So what is 4? 4 is the HCF. 4 is the HCF of. So therefore what we will write, therefore HCF of 4052 comma 12576 is equal to what? Is equal to 4. Okay, understood? So ये अप्रोच से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड? तो ये मेथड क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को। ओके, सो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ बेस्ड अपॉन यूक्लिड्स डिवीजन